Order 41, Rule 5, please. Rule 5. Now, before I begin with Rule 5, ये समझ लो that Rule 5 से execution starts. Execution starts. अब देखो execution, I hope तुम्हें मालूम हो, but अगर नहीं मालूम है तो execution is, so suppose in a matter a decree has come. Judgment आई और judgment के बाद decree आ गई. अब for example, there was a dispute between A and B with regard to this house. Now A has won that dispute. A has won that dispute. Now अब possession B के पास थी उस घर की. Possession was with B. तो अब A जीत गया है अपने उस सूट में, तो ये जो उसकी ये जो डिक्री आई है, इसको उसको एग्जीक्यूट भी तो कराना होगा. अभी तो देखो एग्जीक्यूशन होनी होती डिग्री की, बिकॉज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कोर्ट विच हैज पास्ड द जजमेंट और द ऑर्डर. ये ध्यान रखना, तुम्हें शायद नहीं मालूम होगा या मालूम हो तो अच्छी बात है. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कोर्ट विच हैज एक्चुअली हर्ड योर एंटायर ट्रायल. तो ट्रायल इज हर्ड बाय सिविल जज, एंड सिविल जज हैज पास्ड द जजमेंट एंड अल्टीमेटली द डिग्री. बट फिर वो जजमेंट या वो डिग्री को लेकर आप फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास जाओगे और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बोलोगे कि देखो ये डिग्री मेरे फेवर में आई हुई है, इसको अब आप एग्जीक्यूट करो. तो लेट्स सपोज देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी with regard to this house. Possession of the house was with B. A has won, so A will take this judgment and will go to the executing court and say that look, this was a dispute, I have won this dispute, now you please execute the decree. Yesterday I told you that executing court will not go behind the decree. Executing court will not go behind the decree का meaning executing court will not go into the merits of the dispute. वो काम नहीं है executing court का. Executing court will only see as to what portion has to be executed. And subsequently वो समन करके समन बुलाएगा, and बुलाने के बाद उसको जो भी objections होगी opposite party को वो लेके it will go on for execution. So order 41 rule 5 से एग्जीक्यूशन कैसे होता है, दैट बिगिंस. I told you I will be covering 5 till 25. उसमें से भी 22 से 25 are very very important, apart from 11 and 12, 11 and 14 also. So this is what is execution. Order 41 rule 5 please. क्या कहता है देखो जरा. Pardon me. 5 clause 1. An appeal shall not operate as a stay. An appeal shall not operate as a stay of proceeding under a decree or order appealed from, except so far as the appellate court may order. Nor shall the execution of a decree be stayed by reasons of only an appeal having been preferred from the decree. But the appellate court may, for sufficient cause, order stay of execution of a decree. देखो पहले समझो ये क्या कह रहे हैं. So suppose there was a dispute, let's suppose between me and Rudraksh. There is a dispute between me and Rudraksh with regard to this house. Now, I am saying that this house belongs to me and Rudraksh is saying that this house belongs to him. इस घर का possession is with Rudraksh. So he is currently living in the house. Finally, the trial chala. Trial has begun. Trial chalte chalte, somewhere here, the judgment came. Somewhere here, the judgment has come, and finally, Rudraksh has lost the case. Now, after the judgment, decree will be passed. It is here that the decree will be passed.
अब जैसे ही डिक्री पास होगी, दोनों पार्टीज अपना अपना काम करना शुरू करेंगी। कैसे? जैसी डिक्री पास होगी, सो द मोमेंट डिक्री इज पास्ड, Jay will go for execution. Jay will go for execution, and Rudraksh will prefer an appeal. ये समझ में सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. The moment the decree is passed, both the parties will start off their own journey in the sense that Jay, the winning party, will go for execution of the decree, and the losing party will prefer an appeal. तो एक तरफ से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में केस चलेगा और दूसरी तरफ से अपीलेट कोर्ट में केस चलेगा. अपीलेट कोर्ट में हियरिंग चलेगी. ना सपोज एग्जीक्यूशन, अब यहां समझो इसको. ना सपोज जय, फर्स्ट केस पकड़ लेते हैं. जय हैज गॉन इन एग्जीक्यूशन एंड द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इज हियरिंग the decree. Finally, the execution court has executed the decree. The executing court has executed the decree. And since the question was of possession of the house, so Rudraksh has because the executing court has since executed the decree, so finally Rudraksh has to give possession of the house to Jay. Now suppose now because the executing court has executed the decree, अभी यहाँ पर अपील पेंडिंग है, ये ध्यान रखना. अपील पेंडिंग है, अभी की सुनवाई हो रही है. अभी इतने में ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने फटाफट एग्जीक्यूशन पास कर दिया, और क्योंकि यहाँ से स्टे नहीं मिल पाई इसको, तो इसलिए अब बिकॉज द एग्जीक्यूशन हैज बीन ग्रांटेड, हेंस रुद्राक्ष हैज टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द हाउस टू Jay. नाउ अब ये समझो, अब ये एग्जीक्यूट रुद्राक्ष हैज टू हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द हाउस टू Jay, वो तब जब अपीलेट कोर्ट में अपील पेंडिंग है. अपीलेट कोर्ट में अपील पेंडिंग है. उस जैसी अपीलेट कोर्ट में अपील पेंडिंग है, अभी सुनवाई हो रही है, इतने में ही एग्जीक्यूशन कोर्ट ने एग्जीक्यूशन पास कर दी और रुद्राक्ष ने घर की चाबियां जय को दे दी और जय ने घर में रहने लग गया. अब मान लो यहां अपील में अपीलेट कोर्ट ने जय की डिग्री को सेट असाइड कर दिया और बोला नहीं, ट्रायल कोर्ट ने गलत जजमेंट पास की. इट इज एक्चुअली द हाउस बिलोंग्स टू रुद्राक्ष ओनली. It is actually the house which belongs to Rudraksh only. अब यहाँ तो मैं आ गया हूँ पोजेशन में. Now here I am living in the house, and in the appeal, the judgment which granted me the possession has set aside the decree. Now, because the decree has been set aside, I will have to hand over the possession back to Rudraksh. I will have to hand over the possession back to Rudraksh. This is what is called as restitution. हालांकि अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ाऊंगा इसको, बट अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं what is restitution. This is what is called as restitution. To restore back. क्या समझना? Restitution means to restore back. Restore back what? Whatever was taken away, whatever was given to you. Whatever was given to you, you have to restore it back to that person who had given it to you. यहां तो समझ में आया तो बताओ. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है जी. अब मैं वो सेक्शन वापस पढ़ रहा हूं. An appeal shall not operate as a stay of proceeding under a decree or order appealed from, except so far as the appellate court may order, comma, nor shall execution of a decree be stayed by reason only of an appeal having been preferred from the decree, semicolon. और सेमीकोलन लगा दिए.
बस सेमीकोलन मतलब यही सेंटेंस यही खत्म हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि when a judgment has come and the losing party has gone to an appeal to the appellate court, so just because the appellate party has gone in appeal to the appellate court, just by mere going and filing the appeal, it does not mean that the executing court will stay the execution. रुद्राक्ष जस्ट बिकॉज रुद्राक्ष अपील में गया है अपीलेट कोर्ट के पास और उसने अपनी अपील फाइल की है, दैट डज नॉट मीन दैट एग्जीक्यूशन में that does not mean that the executing court execution को स्टॉप कर देगा या स्टे कर देगा, सॉरी वो स्टे नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑपोजिट पार्टी ने लूजिंग पार्टी ने अपील प्रेफर करी है। ये अगर इसको स्टे चाहिए तो ये अपील में जाए, अपीलेट कोर्ट के पास जाए और अपीलेट कोर्ट को पे जाके स्टे के लिए अप्लाई करे। ये रुद्राक्ष अपीलेट कोर्ट जाए और अपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। जस्ट बिकॉज रुद्राक्ष हैज फाइल्ड एन अपील, mere filing of appeal will not act as a stay. Number one. Number two, that when the losing party, in this case Rudraksh, has gone in appeal to the appellate court, there he will have to file an application. ध्यान सुनना इस पॉइंट को। There he will have to file an application for stay of execution. और वो क्यों, वो जब स्टे की एप्लीकेशन क्यों लगाएगा, वो स्टे की एप्लीकेशन इसलिए लगाएगा बिकॉज ही विल टेल द कोर्ट, ही हैज टू गिव रीजंस, सो ही विल टेल द कोर्ट कि आप इसको स्टे कर दो। तो अपीलेट कोर्ट पूछेगा क्यों स्टे कर दूं, तो ये रुद्राक्ष जवाब देगा दैट लुक इन अपील व्हाट इफ यू विल फाइंड, यू एज इन द जज, हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट जज विल फाइंड दैट द ट्रायल कोर्ट हैड रॉन्गली पास द जजमेंट, और क्या पता मैं जीत जाऊं, अभी तो मैं हारा हुआ हूं, क्या पता मैं जीत जाऊं। अगर आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को स्टे नहीं करोगे तो बाद में रेस्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो रेस्टिट्यूशन का एक अपना प्रोसेस होता है जो मैं थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं आपको। सो इट इज बेटर to, instead of again going taking the longer route, you might as well stay the execution right now. Whatever the decision is of the whatever the decision is of the appellate court, I might lose, I might win. If I lose, obviously the possession is with Jai, I have handed over the keys, so then he can take the possession of the house. But if I will win, तो मुझे जय को फिर बाहर निकलवाना पड़ेगा, फिर लंबा प्रोसेस चालू करना पड़ेगा ऑफ रेस्टिट्यूशन 144। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग द लॉन्गर वे, यू स्टे द एग्जीक्यूशन राइट नाउ। तो अपीलेट कोर्ट सुनवाई करेगा इस पे, देयर इज अ प्रॉपर आर्गुमेंट्स व्हिच विल गो ऑन स्टे। if the appellate court stays, then it is a stay of execution. But if the appellate court will not stay the decree, then Jay will go ahead with the execution. तो इसका मतलब you may apply for the stay of execution either to the appellate court or to the trial court as well. You can apply ट्रायल कोर्ट मतलब डिक्री कोर्ट जिसने जजमेंट पास की थी। तो आप इन दोनों जगहों पे स्टे की एप्लीकेशन लगा सकते हो, इन दोनों जगह पे आप स्टे की एप्लीकेशन लगा सकते हो। अपीलेट कोर्ट में अगर आप अपील में गए हो तो वहां लगा दो स्टे की एप्लीकेशन, या अगर आपने अपील नहीं करनी तो डिक्री कोर्ट में स्टे की एप्लीकेशन लगा दो जिसने जजमेंट पास की थी आपके खिलाफ। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Understood. सबको समझ में आ गया? Clear है sir. Clear है. एक सेंटेंस लिख लो प्लीज। whenever a party whenever a party files an application for stay, whenever a party has to file an application for stay of the execution, whenever a party has to file an application for stay of the execution, comma,
he can file that application. He can file that application in the appellate court. He can file that application in the appellate court, or he can file the application in the decree court. Or he can file the application in the decree court. Or he can file the application in the decree court. Full stop. Full stop. The party preferring an appeal, has to satisfy. Party preferring an appeal has to satisfy. The party preferring an appeal, इसमें एक रुक जाओ, इसको ऐसे लिखो, the party preferring an appeal and asking for stay of execution. The party preferring an appeal and asking for stay of execution has to satisfy the appellate court. Has to satisfy the appellate court. Satisfy the appellate court as to why the stay should be granted. Has to satisfy the court as to why the stay should be granted. Full stop. Full stop. The party filing an application for stay. Party filing an application for stay has to deposit some security also. The party filing an application for stay has to deposit some security also in the form of money or property papers, etc. Money or property papers, etc. to show his bona fide. To show his bona fide. Full stop. समझ में आ गया ये पॉइंट? Is this point clear to everybody? कि उसकी Yes, sir, मर्जी clear. है, हाँ, उसकी मर्जी है, he can apply for stay either to the appellate court or to the decree court, trial court. और जो भी stay मांग रहा है, he has to deposit some security to show his bona fide. Order 41 Rule 5 ये कहता है that just because you have filed an appeal, proceeding for execution will not automatically get stayed. ध्यान सुनना, Order 41 Rule 5 ये कहता है that just because you have filed an application for appeal, you have just gone in appeal, the losing party has gone in appeal, so by mere going in appeal will not stay the execution. You will have to make an application for stay. और जब आप एप्लीकेशन लगाएगा लूजिंग पार्टी, उसमें भी अपीलेट कोर्ट की मर्जी है, मे देखो मे लिखा है यहां पर। कैसे पहुंच गया?
Sorry for the appellate court as far an appeal shall not operate as a stay or proceeding under a decree or order appealed from except so far as the appellate court may order. जैसे कि लिखा है that the appellate court may order. तो discretion है, it is the discretion of the appellate court that the appellate court might stay or might not stay. अगर stay मिल गया तो execution will be stayed. If not, that execution will go ahead as per the proceedings. सम ये point clear है तो आगे चलो. An order by the appellate court for stay of execution of a decree shall be effected from the date of communication of such order to the court of first instance, but an affidavit sworn by the appellant based on his personal knowledge stating that an order for stay of execution of the decree has been made by the appellate court shall pending the receipt from the appellate court of the order for the stay of execution or any order to the contrary be acted upon by the court of first instance. वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, explanation is saying this, that for पहला पार्ट तो ये कह रहे हैं explanation में कि the stay of execution will not operate from the date when the order was made. Not from the date when the stay order was made. It will operate from the date when the stay order was transmitted. Common sense, to the trial court. देखो क्या होता है, समझो बात को. मान लो today is the date when the appellate court has stayed the order. तभी तो तुमने देखा होगा कि पार्टी फटाफट भागती है ट्रायल कोर्ट के पास कि भैया देखो स्टे का ऑर्डर आ गया है, क्योंकि अगर अपीलेट कोर्ट ने इस तारीख पे स्टे किया है तो इट इज स्टे फ्रॉम द अपीलेट कोर्ट, नॉट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट. सो इफ इट टेक्स अबाउट 1 day टू रीच द ट्रायल कोर्ट, ये ऑर्डर, then as per the trial court, stay was granted on so and so date. As per the trial court, stay was granted on this date and not on this date. But ये लैप्स बचाने के चक्कर में ना, ये लैप्स बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, what advocates do is that immediately that same day they will file an affidavit. They will file an affidavit that as per my knowledge, the appellate court has stayed the order. What advocates do, they file an affidavit. और affidavit कहाँ file करेंगे? In the trial court. They will file an affidavit in the trial court that to my knowledge मतलब advocate की knowledge, to my knowledge the appellate court has stayed the execution. Then when they will file an affidavit, then the trial court will stay the execution from the date when the affidavit was filed, and will not wait for the order to come. फिर तो ऑर्डर जब मर्जी आता रहे, बट वंस द एडवोकेट फाइल्स एन एफिडेविट तो उसी जिस दिन फाइल किया उसी दिन पे उस दिन से वो स्टे लगा देंगे ऑफ एग्जीक्यूशन. बिकॉज यू सी एक्सप्लेनेशन इज एनलेबलिंग प्रोविजन. लिख कर रखना अपने पास. Explanation is an enabling provision.
because it enables the party to, instead of giving the order, because order अभी तो जज ने ओरल ऑर्डर दिया है, तो वो टाइप होगा, कोर्ट मास्टर की सील स्टैंप लगेगा, फिर मिलेगा। तो इतने में देरी क्यों हो, इसलिए इमीडिएटली वकील बोलते हैं कि हम लोग ट्रायल कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल कर देते हैं। मोस्टली और भी प्रैक्टिस में ये होता है दैट जिस दिन स्टे ऑर्डर होता है उसी दिन एडवोकेट बोलते हैं इसको दस्ती दे दो, इसको दस्ती दे दो, दस्ती साइंड एंड सील्ड अंडर द कोर्ट मास्टर। दस्ती मतलब कि जो ऑर्डर जो टाइप होगा, जो जज ने ऑर्डर डिक्टेट किया है, दैट ऑर्डर विल बी टाइप्ड, और जज के साइन किसी साइन नहीं होंगे, सीधा कोर्ट मास्टर के साइन हो जाएंगे, उस पर मोहर लग जाएगी, स्टैंप लग जाएगा, एंड इट विल बी गिवन हैंड टू यू। दैट इज कॉल्ड दस्ती। इन प्रैक्टिस इट विल हेल्प यू, जब प्रैक्टिस के काम होते हैं। बट देखा जाए तो explanation is an enabling provision because it enables the party to file for an affidavit instead of the original order. Point clear? Clear है Point sir. clear है everybody? ठीक है। Stay by clause 2 पे आ जाओ। Stay by court which passed a decree where an application is made for stay of execution of an appealable decree before the expiration of time allowed for appealing therefrom. The court which passed the decree may, on sufficient cause being shown, order the execution to be stayed. वो ये बेसिकली ये कह रहे हैं, फिर से पढ़ लेता हूं एक बार। Stay by court which passed the decree where an application is made for stay of execution of an appealable decree. Decree appealable है, ये याद रखना। Execution of an appealable decree, so that the decree is appealable. उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। Before the expiration of the time allowed from appealing therefrom, the court which passed the decree may, on sufficient cause being shown, order the execution of the stay. क्या कह रहे हैं समझो, क्लॉज 2 क्या कह रहा है? So suppose today was the day when the decree was passed. Today is the day when the decree is passed. और ये है limitation period का, ये है limitation period to file an appeal. This is the last day when you have to file an appeal. अब ये इस डिक्री के खिलाफ अगर आपको स्टे लेनी है तो या तो आप स्टे ले लो अपील, या तो आप स्टे ले लो हियर व्हेन यू विल फाइल एन अपील, अपील फाइल टू द अपीलेट कोर्ट, तो यहां तो आप स्टे यहीं से ले लो, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, इधर यू टेक स्टे फ्रॉम हियर, और इफ यू हैव नॉट अपील्ड, या अगर आपने अपील नहीं किया है, देन यू कैन पुट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टे टू द डिक्री कोर्ट एज वेल। You can put an application for stay of decree court as well, जिसने डिक्री पास की थी। Decree court has also the powers to stay the decree. तो ये भी stay पास कर सकता है, stay of execution. Decree court can also stay the order. तो कहने का मतलब है, be it decree court or be it appellate court, both can order stay. But ये discretion है, ये याद रखना। This is discretion. They can refuse to pass order for stay. They can refuse also. नहीं हम स्टे ऑर्डर पास नहीं कर रहे, आप let the decree be executed. अगर आप जीत गए तो we will go for restitution. But ये मर्जी है उनकी। अगर वो they refuse to say, then the decree will be executed. अगर एक बार डिक्री एग्जीक्यूट हो गई, तो सपोज देयर वाज अ डिस्प्यूट, पहले वाला केस में देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष हार गया, एंड आई हैव गॉट, रुद्राक्ष नाउ हैंड्स ओवर द पोजेशन ऑफ हाउस टू मी, और रुद्राक्ष गोज फॉर स्टे, तो अपीलेट कोर्ट ने बोला कि नहीं कोई जरूरत नहीं है स्टे की, लेट जय टेक ओवर द पोजेशन। तो जब जय को पोजेशन मिलेगी तो कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, जिस भी कोर्ट ने बोला है कि आई विल नॉट ग्रांट यू स्टे,
तो वो लिखेगा अपने ऑर्डर में दैट रुद्राक्ष had applied for stay after hearing both the parties, stay not granted. Let the party go for execution. तो स्टे नहीं मिली, एग्जीक्यूशन हो जाएगा. बट कोर्ट साथ साथ ये भी बोल देती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर्ट साथ साथ ये भी बोल देती है दैट दो वी आर अलाउइंग एग्जीक्यूशन बट जय हैज टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी. जय हैज टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी. और ये सिक्योरिटी क्यों कोर्ट बोलती है देने को? इसलिए ताकि अपील में मान लो हम डिक्री सेटिसाइड कर दें और बोले नहीं नहीं रुद्राक्ष इज द विनर, द हाउस शुड बी रिमेन विद रुद्राक्ष. तो वापस अब मान लो मैं उसको घर ना दूं, वापस की मैं अब तो घर नहीं देता, तो जो मर्जी कर ले, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अपीलेट कोर्ट हैज टोल्ड दैट रुद्राक्ष इज द ओनर ऑफ द हाउस. तो उस केस में इसकी जो सिक्योरिटी है दैट विल गेट फोरफीटेड. दैट विल गेट फोरफीटेड. ये समझ में आया? The party can file an application for stay in the decree court or can file an application for stay to the appellate court. सबसे पहले अगर वो डिक्री कोर्ट में फाइल करेगा और डिक्री कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो फिर वो यहाँ पर आके फिर से स्टे के लिए अप्लाई करेगा. तो हमेशा इट इज एडवाइज, मतलब लोग इट इज प्रेफरेबल कि आप सबसे पहले स्टे के लिए यहीं अप्लाई कर दो. तो अगर स्टे यहाँ नहीं मिली तो स्टे यहाँ तो मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से डिसमिस हो गया फिर तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जा पाओगे आप. But low people, what advocates do it once the execution has started, तो वो बोलते सीधा हम अपील ही फाइल करेंगे और अपील में ही हम बोलेंगे स्टे दे दो. तो वहां पे अपीलेट कोर्ट से सुनवाई करता है स्टे की एप्लीकेशन की. पॉइंट क्लियर? एवरीबडी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर. ठीक है. यस सर. क्लॉज 3 क्या बोलता है? नो ऑर्डर फॉर स्टे. क्लॉज 3 बेसिकली कंडीशंस लेट डाउन कर रहा है. क्या देखते हैं? नो ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 अनलेस द कोर्ट मेकिंग इट इज सेटिस्फाइड. अब कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि क्यों हमें सच टू स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन दे. नंबर 1, that substantial loss may result to the party applying for stay of execution unless the order is made. कि हमें बहुत नुकसान हो जाएगा अगर आप सब्सटेंशियल लॉस हो जाएगा हमें अगर आप डिग्री को स्टे नहीं करोगे तो. नंबर 2, that the application has been made without any unreasonable delay. ताकि हम अनरीजनेबल डिले मतलब हमने कोई देरी नहीं करी, वी आर विद इन द लिमिटेशन पीरियड. आप we have not caused any unreasonable delay while filing the application for stay. So I'm well within time limitation period when I'm filing the application for stay. Number 3, that security has been given by the applicant for the due performance of such decree or order as may ultimately be binding upon him. मतलब उसने and he is also giving security for execution. He is also giving security for execution. तो ये इन ग्राउंड्स पे आपको ये 3 ग्राउंड्स तो मेंशन करने ही पड़ेंगे व्हेन यू आर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन टू द अपीलेट कोर्ट या किसी भी कोर्ट में. अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर रहे हो तो ये 3 ग्राउंड्स तो आपको मेंशन करने ही पड़ेंगे. आगे चलते हैं. क्लॉज 4, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 द कोर्ट मे मेक एन एक्स पार्टे ऑर्डर फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन. कभी कभी देखो क्या होता है कि बहुत अर्जेंट है, मान लो आज ही एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर दिया है और 2 बजे 12 बजे ऑर्डर आया, उसने 2 बजे अप्लाई, उसने 1 बजे अप्लाई कर दिया फॉर एग्जीक्यूशन. जैसे मेरे रुद्राक्ष वाले केस में यही हुआ था दैट आज वो 12 बजे ऑर्डर आया है, 12 नून तो 12 भी होता है. आज नून पे ऑर्डर आया, जजमेंट आई है एंड जय हैज वन. At 1 p.m. Jai goes for execution. At 1 p.m. Jai goes for execution. तो 2 बजे फटाफट, ये बात रुद्राक्ष को 1 बजे मालूम चली, रुद्राक्ष ने इमीडिएटली 2 बजे एप्लीकेशन लगा दी अपीलेट कोर्ट में फॉर स्टे. अपीलेट कोर्ट में फॉर स्टे. और वहां कोर्ट को बोला कि इट इज वेरी अर्जेंट बिकॉज जय हैज फाइल्ड फॉर एग्जीक्यूशन. तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? उस केस में कोर्ट सिर्फ रुद्राक्ष को ही सुन लेगा.
In very urgent cases, what court does is court will grant. Agar if the appellate court believes that stay should be granted, the court will for the interim period कुछ टाइम तक के लिए स्टे कर देगा और वो जो स्टे का ऑर्डर आएगा दैट विल बी एक्स पार्टे स्टे. एक्स पार्टे मतलब कोर्ट ने सिर्फ रुद्राक्ष को ही सुना है अभी तक. जय की सुनवाई अभी नहीं हुई है तो कोर्ट उस रुद्राक्ष को इंटरिम रिलीफ दे देगा, मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा कि स्टे हो जाएगा कोर्ट से. अब अल्टीमेटली फिर जय को समन्स जाएंगे, जय अपीयर होगा, जय बहस करेगा एंड फाइनली व्हाटएवर विल हैपन. So, in very urgent circumstances, the court can order for ex parte stay. Only when it is very urgent situation. बहुत अर्जेंट सिचुएशन है कि अगर अभी इमीडिएटली स्टे नहीं मिला तो मान लो एमसीडी घर तोड़ देगी या जय घर पर कब्जा कर लेगा या जय कब्जा करके भाग जाएगा कहीं पर, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट फिर एक्स पार्टे स्टे ऑर्डर पास कर देता है. लेकिन एक्स पार्टे स्टे इज फॉर सम टाइम. Ultimately, hearing has to be done by party. Ultimately, hearing has to be done by party. By party मतलब in the presence of both the parties. In the presence of both the parties. ये समझ में आया? Is this point clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Clause 5 पढ़ लो. Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-rules where the appellant fails to make a deposit or furnish the security specified in sub-rule 3 of Rule 1, the court shall not make an order for staying the execution. Simple है that when a party is filing for stay, some security amount has to be deposited. और ये डिपॉजिट डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट की, ये लिख के रखना यहाँ. दिस नॉट अ डिस्क्रिशन कि कोर्ट चाहे तो आप डिपॉजिट करो, कोर्ट ना चाहे तो डिपॉजिट ना करो. इट इज कंपल्सरी. इट इज कंपल्सरी. अगर आपको स्टे चाहिए तो आप डिपॉजिट करो सिक्योरिटी. You deposit the security. And it is compulsory. It is not discretion of the court. कोर्ट की मर्जी नहीं चलेगी, ये कंपलसरी है. अगर आपको स्टे चाहिए तो आप सब कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करो. आगे चलो क्लॉज 6 पे. क्लॉज 6 क्या बोलता है? सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अपील्ड फ्रॉम. क्या बोलता है? Where an order is made for execution of a decree from which an appeal is pending, मतलब appeal pending है, the court which passed the decree shall, on sufficient cause being shown by the appellant, require security to be taken from restitution of any property which may be or has been taken execution of the decree, or for the payment of the value of such property, and for the due performance of the decree or order of the appellate court, or the appellate court may for the like cause direct the court which passed the decree to take such security. वो क्या बोल रहे हैं? तो ये कह रहे हैं बेसिकली दैट ट्रायल कोर्ट से the decree holder has won. Jai is the decree holder and Rudraksh is the judgment debtor. So from trial court, the judgment debtor has gone in appeal. From the trial court, the judgment debtor has gone in appeal and appeal is pending. और appeal अभी pending है. और यहाँ से the trial court is getting the decree executed. यहाँ से अपील पेंडिंग है अभी, ये ध्यान रखना. अपील इज पेंडिंग और यहाँ से ट्रायल कोर्ट इज गेटिंग द डिक्री एग्जीक्यूटेड. और ट्रायल कोर्ट ये जानता है दैट अपील इज पेंडिंग. ट्रायल कोर्ट नोज दैट अपील इज पेंडिंग. बट सपोज ट्रायल कोर्ट बोलता कि आई विल नॉट स्टे द डिक्री. ट्रायल कोर्ट सेज दैट आई विल नॉट स्टे द डिक्री और आई विल नॉट स्टे द डिक्री एंड आई वांट द एग्जीक्यूशन टू बी डन.
जब ट्रायल कोर्ट जानता है that appeal is pending, still the trial court is not staying and trial court is wanting the execution to be done, in that case security has to be deposited. In that case trial court will ask for security to be deposited. और किससे सिक्योरिटी लेगा? डिग्री होल्डर से. क्यों सिक्योरिटी लेगा? क्या पता अपील जबकि फाइनल सुनवाई हो जाए, क्या पता तुम हार जाओ, तुम मतलब जय हार जाए, तो उस केस में फॉर रेस्टिट्यूशन, for the purpose of restitution, trial court will ask for security from the degree holder. Trial court will ask for the security from the degree holder. तो इससे क्या समझ में आया तुम्हें? इससे समझ में आया that security for execution, ये लिख के रख लो अपने पास, it is very important. Security for execution is mandatory. अगर आपको अपनी डिग्री एग्जीक्यूट करवानी है, then security has to be deposited. It is compulsory. But security for restitution, जब आप अपना कोई काम अपना घर रेस्टिट्यूट करवाना है, उसके लिए सिक्योरिटी इज नॉट मैंडेटरी. ये लिख के रख लो, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. सिक्योरिटी फॉर एग्जीक्यूशन इज मैंडेटरी बट सिक्योरिटी फॉर रेस्टिट्यूशन इज नॉट मैंडेटरी. You can file in the trial court also to get the security done, or appellate court. You can apply to the appellate court also, and the appellate court may direct the trial court also. Last में ये तो लिखा है that or the appellate court may for the like cause direct the court which passed the decree to take security. या अगर आपने अप्लाई किया है to for security, if you apply to the appellate court for security, then appellate court will direct the trial court to take security. खुद ना ले, बट वो ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट कर दे कि तुम ले लो मेरे बिहाफ पे. बट ये this point is very very important, that security for execution is compulsory, it is mandatory, but for restitution it is not mandatory. आगे चलो, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है जी. Second clause, where an order has been made for sale of immovable property in execution of a decree and an appeal is pending from such decree. मतलब और एक तरफ ऑर्डर हो गया सेल का एग्जीक्यूशन में और एक तरफ डिग्री पेंडिंग है. The sale shall, on the application of the judgment debtor, जो हार गई losing party, to the court which made the order of execution, be stayed on such term as to giving security, otherwise as the court thinks fit, until the appeal is disposed of. अब ट्रायल कोर्ट से डिग्री आई और अपील और जजमेंट डेटर ने अपील कर दिया एपिलेट कोर्ट में. रुद्राक्ष ने ट्रायल कोर्ट से जजमेंट आई, जय जीता, रुद्राक्ष हारा. रुद्राक्ष ने अपील प्रेफर कर दी अपीलेट कोर्ट में. अपीलेट कोर्ट में अपील पेंडिंग है अभी, और इन द मीनवाइल जय ने अप्लाई कर दिया ट्रायल कोर्ट में फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री. जय अप्लाई टू द ट्रायल कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री. बिफोर रुद्राक्ष कुड टेक स्टे फ्रॉम द अपीलेट कोर्ट, यहां से जय ने कोर्ट से फटाफट ऑर्डर ले लिया फॉर सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. मान लो घर का सेल करने के लिए ऑर्डर ले लिया कोर्ट से. तो अगर दूसरी पार्टी ने, विनिंग पार्टी ने सेल का ऑर्डर ले लिया है लोअर कोर्ट से और आपने अपीलेट कोर्ट से अभी तक स्टे नहीं ले पाए हो, इन दैट केस आप मतलब रुद्राक्ष लूजिंग पार्टी जजमेंट डेटर will file for an application in the trial court, जो जिसने ऑर्डर किया है सेल का. Rudraksh will file an application to the trial court who has ordered sale to stay the order of sale, to stay the execution of the decree. अब उस केस में ट्रायल कोर्ट की मर्जी है. ट्रायल कोर्ट स्टे करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे नहीं करे. अगर ट्रायल कोर्ट मान गया स्टे के लिए तो आपसे रुद्राक्ष से जजमेंट डेटर से सिक्योरिटी ले लेगा. तो वो रुद्राक्ष से वो ले लेगा सिक्योरिटी फॉर स्टे. तो यहाँ पर सेल हो रही है, ये ध्यान रखना.
यहाँ पर सेल हो रही है और ये सेल हो रही है in execution, or judgment debtor, which is the losing party, has not been able to take stay from the appellate court. तो उस केस में रुद्राक्ष वापस नीचे कोर्ट भागेगा और बोलेगा कि आप जिस कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, जिस कोर्ट ने सेल का ऑर्डर दिया है, सेइंग दैट कि आप इस सेल को रुकवा दो, स्टे कर दो, मेरी अपील चल रही है अभी, तो उस केस में द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विच इज ऑर्डर्ड फॉर स्टे has the discretion, can put a stay or cannot grant a stay. If the trial court does not grant stay, sale will take place. If the trial court does grant stay, then in that case, security will be taken from Rudraksh. Point clear? Everybody point clear? Yes, sir. Yes, sir. सच्ची में समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो नहीं है ना कि समझ में नहीं आ रहा है? स्पीड ठीक है मेरी? Yes, sir. Clear है. ठीक है? Yes, sir. Clear है. परफेक्ट. अब आ जाओ, आगे चलो. 7 तो omitted है, repealed है. अब बिफोर आई गो हेड, एक बात, बिफोर आई गो हेड, आई वांट टू talk about restitution because I've been discussing restitution for quite some time. So before I go ahead, let me talk about restitution. देखो restitution होता क्या है? दो लोग, let's suppose Rudraksh is there. आज केस फाइल हुआ, जजमेंट यहां आ गई. आज केस फाइल हुआ, जजमेंट यहां आ गई. जजमेंट में जय हैज वन, रुद्राक्ष हैज लॉस्ट. Jay has won and Rudraksh has lost. So because Jay has won, Jay will immediately go to the executing court for execution. Jay will immediately go to the executing court for execution. Execution of पूरा लिखो, execution of decree. Alternatively, Rudraksh will prefer an appeal. Rudraksh will prefer an appeal. और अपील जब अभी पेंडिंग है, यहां से एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डिक्री एग्जीक्यूट कर दी. अपीलेट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डिक्री एग्जीक्यूट कर दी. मतलब जय को घर की पोजेशन, जय हैज गॉट द पोजेशन ऑफ द हाउस. Jay has got the possession of the house. But look at the irony, यहाँ से अपील में this judgment got set aside. This judgment has got set aside. मतलब Rudraksh is the actual owner of the house. But this appeal will take about 5-6 years to get concluded. इतने में मैंने 5 साल घर में रह लिया. Decree has been executed. Jay has taken over the possession of the house. And he continues with the possession of the house. But बाद में the appellate court has set aside the decree, saying that no, the judgment was wrong. Rudraksh is the actual owner of the house. So the Rudraksh now, ये set aside का order को लेके Rudraksh now will go to the trial court. And he will file an application for restitution. उस restitution की application पे hearing होगी. Hearing will take place in that restitution application. And suppose after some time the trial court passes an order for restitution. Trial court ने order pass कर दिया for restitution. Restitution मतलब means to restore back. मतलब now Jay has to restore back the house to Rudraksh. तो अब क्वेश्चन ये उठा कि रुद्राक्ष को रेस्टोरेशन में क्या क्या मिलेगा.
सबसे पहले तो उसको घर मिलेगा, he will get the house, he will get the house in which I was living. Secondly, उसको mean profits मिलेंगे, सेकेंडली उसको mean profits with interest मिलेगा. तीसरा, अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज कर दिया है तो वो डैमेज की कॉस्ट भी मिलेगी. और अगर मान लो घर में कुछ इंप्रूवमेंट करानी है, if there is a need for any improvement in the house, तो वो इम्प्रूवमेंट की जो कॉस्ट है वो भी अजय पे करेगा रुद्राक्ष को. तो ये 4 चीजें रुद्राक्ष will get in restitution. But why people prefer for stay instead of restitution is because ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है. अब फिर अभी तो मैं उस घर में रह रहा हूँ, फिर आपने डिग्री एग्जीक्यूट, अभी तो मैं अपने घर, उस घर में रह रहा हूँ, अपने हिसाब से रह रहा हूँ. मैं एक कमरे में रहता हूँ, दूसरे कमरे में मेरा स्टडी रूम है. वो आपने डिग्री एग्जीक्यूट करवा दी. अब जय रहेगा तो जय अपने हिसाब से रहेगा उस घर में. क्या पता जिस कमरे को रुद्राक्ष ने स्टडी रूम बनाया था, जय उसको अपना लिविंग रूम बना ले या उसको मास्टर बेडरूम बना ले. तो इंटायर हाउस उथल पुथल हो जाएगी अननेसेसरली, और अल्टीमेटली जीत तो मैं गया ही हूँ. तो इसलिए इट इज द प्रेफरेंस ऑफ द पार्टी टू ऑलवेज गो फॉर स्टे एंड नॉट रेस्टिट्यूशन. हालांकि आपको सब कॉस्ट वॉस्ट मिल जाती है सारी, ये चारों पॉइंट आपको मिल जाएंगे, बट फिर तो नुकसान होने के बाद मिलेगा ना. फिर उसको ठीक कराओ, फिर आओ. दैट विल टेक अ लॉन्ग प्रोसेस टाइम, and it is a long process. That is why it is parties will always prefer for stay instead of restitution. इसमें एक पॉइंट है, और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो समझने वाला पॉइंट है. और पॉइंट वो ये है that the judgment debtor, the losing party Rudraksh, who has now won in appeal, the losing party Rudraksh in the trial court, who has won in the appeal, he will be restored back to the same position as he was living. What is restitution? Restitution में जिसके खिलाफ रेस्टिट्यूशन आई है, मतलब जय रुद्राक्ष को उसी सेम पोजीशन में रिस्टोर बैक करेगा जिस पोजीशन में रुद्राक्ष उस घर में रहता था, और उसी सेम पोजीशन में करेगा और सेम तरीकों से करेगा एज इफ देयर वाज नेवर और देयर वाज नो रेस्टिट्यूशन डन. कि कभी रेस्टिट्यूशन कभी एग्जीक्यूशन हुई ही नहीं थी. नॉट रेस्टिट्यूशन, एग्जीक्यूशन. Jay will have to restore back Rudraksh to the same position as if there was no execution done. और वो सारे benefits उसको वापस देगा जो उसके पास पहले से थे, which means कि execution never took place. So it has to be, ये लिख के रख लो, it has to be a perfect restitution. It has to be a perfect restitution. You restore back the winning party to the same position as he was living before the execution was done. ये पॉइंट समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir, understood. कशिश कुछ बोल नहीं रही है? सर मैंने अभी बोला था कि yes, sir, understood. अच्छा, ओके. देखो, रेस्टिट्यूशन सिर्फ, और ये थोड़ा सा इंटरलिंकिंग कर रहा हूँ तुम्हारे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रेस्टिट्यूशन सिर्फ सीपीसी में नहीं होती, सारे लॉज में होती है. फर्क क्या है कि सिर्फ नाम रेस्टिट्यूशन नहीं होता. तुम थोड़ा दिमाग चलाओ. रेस्टिट्यूशन कैन बी डन इन टॉर्ट ऑल्सो. कैसे? कोई मुझे बता सकता है? रेस्टिट्यूशन इज डन इन टॉर्ट ऑल्सो. कोई बता सकता है कैसे? सर न्यूसेंस या फिर ट्रेसपास में. नहीं, करो कैसे? हाउ विल यू रिस्टोर बैक? सर जो भी हमने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया वो प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे, जो भी मतलब प्रॉपर्टी हमने फेंकी है या फिर मतलब डैमेज पहुंचाया. जो भी लॉस कॉज हुआ है टू द अदर पार्टी,
we will substitute it by paying damages. You have to restore back the opposite party to that same old position as if no loss had occurred. I have defamed Kashish. Kashish has won. I will pay damages. क्यों? कभी सोचा कोर्ट डैमेजेस देने के लिए क्यों बोलता है? इसलिए that I have to restore back Kashish to her original position at which she was living in before defamation took place. Before defamation took place. So for that, court awards damage. अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो और मोर स्पेसिफिकली if you would have read कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, मैंने ऐसे पढ़ाया अपनी वर्कशॉप्स में कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, उसमें there's a concept, I don't know whether you will be able to recall or not, and that concept name is unjust enrichment. देखो, law is all about interlinking and I do interlinking so that jump कर सको आप, चीजों को रिलेट कर सको आपस में दूसरे के साथ. कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, अनजस्ट एनरिचमेंट कॉन्सेप्ट, टॉर्ट में डैमेजेस का कॉन्सेप्ट. यू हैव टू रिस्टोर बैक द पार्टी टू द सेम पोजीशन एज इफ लॉस हैड नेवर अकर्ड. इंश्योरेंस में गाड़ी के इंश्योरेंस लेते हो तो नई गाड़ी लेते हो ना इंश्योरेंस से, ये पैसे लेते हो इक्विवेलेंट, और अपनी गाड़ी ठीक करा लेते हो. गाड़ी ठीक करने का मतलब क्या? गाड़ी को उसी जगह पे उसी तरीके से वापस रिस्टोर कर दिया एज इफ एक्सीडेंट हैड नेवर टेकन प्लेस. सेम इज द कॉन्सेप्ट विद द रेस्टिट्यूशन. समझ में आ गया? और ये याद रखना दैट रेस्टिट्यूशन हैज टू ऑलवेज बी परफेक्ट. Restitution has to be perfect. You have to execute the decree perfectly. You have to execute a decree perfectly. ये समझ में आया? Yes, sir. Understood. तो रेस्टिट्यूशन को आप कंपेयर कर सकते हो विद टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट आल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट विल यू गेट? पोजेशन. अगर घर का डिस्प्यूट है और घर के केस में अगर आपको रेस्टिट्यूशन कराना है तो यू विल गेट पोजेशन, यू विल गेट डैमेजेस, उसका प्लस मीन प्रॉफिट्स, उसका इंटरेस्ट, एग्जीक्यूशन में जो भी खर्चा हुआ है वो सब, everything you will get that as if you had never spent any money also, any money. Even if to such an extent you'll get the restoration, you will get the restitution money also. You'll get restitution money also. Section 144. Section 144 talks about restitution. Section 144 talks about restitution. Point clear everybody? ये समझ में आया? Yes, sir. आगे Yes, चलो sir. जरा. ठीक है. Let's go ahead. अच्छा, मैं 144 पहले तो मैं थोड़ा सा दिखा दूं. Then I will. एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन देख रहे हो? एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन. मुझे तुम्हें इसमें एक क्लॉज समझाना है एंड दैट इज दिस. समझो ध्यान से इसको.
एक्सप्लेनेशन समझानी है और उसमें से ये समझाना है। ये समझ में नहीं आता यूजुअली लोगों को। where the court of first clause C पढ़ रहा हूं मैं, where the court of first instance has ceased to exist or has ceased to have jurisdiction to execute it, the court which, if the suit wherein the decree or order was passed were instituted at the time of making the application for restitution under this section, would have jurisdiction to try such suit. फिर से पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। Where the court of first instance has ceased to exist or has ceased to have jurisdiction to execute it. Ceased, अब नहीं है, ceased. The court which, if the suit wherein the decree or order was passed were instituted at the time of making the application for restitution under this section, would have jurisdiction to try such suit. क्या कह रहा था वो समझने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 144. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेशन का क्लॉज सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The court of first instance has ceased to exist. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब ट्रायल कोर्ट, जहां पर आपने फाइल किया था, ट्रायल कोर्ट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, that has ceased to exist. So for example, today is the day when court passes the decree. Today is the day when the court passes the decree. यहां पर I go for execution. यहां पर I go for execution. अब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है ही नहीं, इट हैज सीज टू एग्जिस्ट. उस केस में क्या होगा? अब जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है ही नहीं तो उस केस में क्या होगा? देयर दे आर, व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स अंडरस्टैंड. द कोर्ट विच, इफ द सूट वेयरइन द डिक्री, देखो इफ लगा दिया उन्होंने. The court which, if the suit, if लगा है, if the suit wherein the decree or order was passed were instituted at the time at the time of making the application for restitution under this section, would have jurisdiction to try. एग्जाम्पल लेके समझाता हूं. मान लो रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन मैंने फाइल करी, लेट्स सपोज 11 अगस्त 2017 को, एक हाइपोथेटिकल डेट ले ली मैंने. रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन मैंने फाइल करी 11 अगस्त 2017 को. डिक्री सेट असाइड हुई 10 अगस्त को. तो 10 अगस्त को डिग्री सेट असाइड हुई और अगले दिन 11 को मैंने रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी. अब क्वेश्चन ये है कि रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए ये कोर्ट सीज टू एग्जिस्ट है ही नहीं. तो क्या करोगे? उस केस में ना ये क्लॉज एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उस केस में ये क्लॉज एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है. और लीगल फिक्शन कैसे क्रिएट कर रहा है समझो. वो ये कह रहे हैं दैट ऑन 11th August 2017 when you are filing an application for restitution you create a legal fiction. अब आप 11 तारीख को एप्लीकेशन फाइल करने गए फॉर रेस्टिट्यूशन, अब देखा तो कोर्ट ही नहीं है. तो उस केस में आप एक लीगल फिक्शन बना लो अपने माइंड में, और वो ये बनाओ
कि मान लो 11 अगस्त को अगर आप ओरिजिनल सूट फाइल करने जाते 11 अगस्त को, if you would have gone to file original suit, then which court would have had jurisdiction? अगर आप 11 अगस्त को एक ओरिजिनल सूट फाइल करने जाते तो कौन से कोर्ट के पास, which court would have had, sorry, which court would have had jurisdiction? तो जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी 11 तारीख की रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन आप उसी कोर्ट में फाइल करोगे. You are creating a legal fiction. The law is creating a legal fiction because the court of first instance has ceased to exist. The court of first instance has ceased to exist. So in that case, in those cases where the court of first instance ceased to exist and you want to file a restitution application, court of first instance जिसने डिग्री पास करी थी आपकी, उसी में तो लगाओगे रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन. तो अब वो तो है ही नहीं. तो अब मान लो, एक फिक्शन क्रिएट कर लो अपने माइंड में कि अगर आप ओरिजिनल सूट फाइल करने जाते उसी दिन जिस दिन आप रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो कौन से कोर्ट में फाइल करते? ओरिजिनल सूट. तो जिस कोर्ट में you would have filed original suit, that court will have jurisdiction to entertain your restitution application. That court will have the jurisdiction to entertain your restitution application. हाँ जी, नहीं समझ में आया मुझे लगता है. I don't think so you people have understood. फिर से समझाऊं तो बताओ. सर प्लीज समझा दो एक बार और. मुझे लग रहा था नहीं समझ में आया. इतनी जल्दी नहीं आता है समझ में. किसको और इसके अलावा, अभिषेक के अलावा किसी को समझ में नहीं आया? सही से समझ में आया? कशिश सर समझ में आ गया. 144 के एक्सप्लेनेशन का क्लॉज सी ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब, सबसे पहले समझो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या होता है. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मींस दैट कोर्ट which has passed your degree. तो डिग्री कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. अब डिग्री कोर्ट से आपको डिग्री मिली, नाउ यू विल गो एंड फाइल फॉर एग्जीक्यूशन. बट उससे एग्जीक्यूशन मान लो हो भी गई अपीलेट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में. अब you went in appeal और अपील में आप जीत गए. Now ultimately the question is of restitution. Ultimately the question arises is of restitution. लेकिन जब आप restitution की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए गए तो आपने देखा, अरे अब मैं restitution की एप्लीकेशन कहाँ फाइल करूं? जिस कोर्ट में फाइल करना था, जो डिग्री कोर्ट था, जो मेरा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस था, वो तो है ही नहीं. अब that court does not exist. तब आप कहां फाइल करोगे अपनी restitution application? In that case, what clause C is saying, you create a legal fiction. एक fiction create कर लो अपने माइंड में और imagine करो कि जिस दिन आप restitution application फाइल करने जा रहे थे, अगर उसी दिन एक कोई सूट फाइल करने जाते तो कौन से कोर्ट में जाते? तो जिस कोर्ट में आप सूट फाइल करने के लिए जा रहे हो उसी कोर्ट में चले जाओ to file for the restitution application. उसी जिस कोर्ट में, the court in which you are going to file the original suit, go and file your restitution application there. जो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूं. Where the court of first instance has ceased to exist, है ही नहीं अब, or has ceased to have jurisdiction to execute the decree. उसके पास अब वो jurisdiction है ही नहीं to execute the decree. The court which, if the suit wherein the decree or order was passed were instituted at the time of making the application for restitution under this section would have jurisdiction to try such suit. ये पहले
यहां तक तो आपको वो बोल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, cease to exist, उसका आंसर यहां से स्टार्ट हो जाता है, इफ से, और इफ से दे आर क्रिएटिंग अ लीगल फिक्शन। जैसे जब भी आपको कभी लॉ में इफ दिखे ना, मतलब समझ लो कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, वो एक फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, क्रिएटिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, बाकी इट इज इजी, तो बाकी यू कैन रीड इट योरसेल्फ। लेट मी कम बैक। ये अभी समझ में नहीं आएगा, यू जस्ट हैव टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस, तभी जाकर समझ में आएगा। 9 प्लीज। Registry of Memorandum of Appeal. The court from whose decree an appeal lies shall entertain the memorandum of appeal and shall endorse thereon the date of presentation and shall register the appeal in the book of appeal kept for that purpose. Simple है. The court in which you have filed, the court in which, the court from which you will file an appeal, मतलब जो decree court है, वहां से that decree court will keep a register. उस डिग्री कोर्ट का एक रजिस्टर होता है और उसमें उसको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कौन सी डिग्री के खिलाफ आप कौन सी पार्टी अपील में गई है। तो रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, एक रजिस्टर एक मेंटेन होना होता है। वो ट्रायल कोर्ट भी मेंटेन करता है, वो अपीलेट कोर्ट भी मेंटेन करता है एक रजिस्टर, कि कौन कौन सी डिग्री के खिलाफ अपील हुई है डिग्री कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, और अपीलेट कोर्ट ये बात का रजिस्टर मेंटेन करेगा कौन कौन सी डिग्री से अपील मेरे पास आई है ट्रायल कोर्ट से। तो अब सिंपल डिग्री हैज टू बी, रजिस्टर हैज टू बी मेंटेन्ड। 10 आ जाओ प्लीज। ब्रेक दे दूं क्या? यू वांट अ स्मॉल ब्रेक? सर अभी पढ़ा दो। अच्छा ठीक है। क्लॉज 10, appellate court, फिर I will give you a break ultimately when it is over. Appellate court may require appellant to furnish security for cost. The appellate court may, in its discretion, either before the respondent is called upon to appear and answer or afterwards on the application of the respondent, demand from the appellant security for cost of the appeal or of the original suit or both. क्या कह रहे हैं देखो, basically they are asking for security for cost. दो पार्टीज, Jay has preferred an appeal against रुद्राक्ष। अब अपील, जब जय ने अपील फाइल करी तो ऑब्वियसली जय विल फाइल एन अपील थ्रू हिज एडवोकेट। उसकी कॉपी जब आएगी रुद्राक्ष के पास तो रुद्राक्ष also has to hire an advocate to fight in the court. तो in appeal रुद्राक्ष will say that what if the appeal is dismissed? What if Jay's appeal is dismissed? Who will give the expenses of मेरा आने जाने का खर्चा, मेरे एडवोकेट की फीस, वो कौन देगा? तो who will pay for my expenditure which I have incurred in defending my appeal? So in that case, the respondent, which is Rudraksh, he will apply to the appellate court, and appellate court फिर जय से सिक्योरिटी ले लेगा कि अगर आप हारे तो ये सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ चला जाएगा। बेसिकली कॉस्ट होती है ये, या पहले भी ले सकता है कि या कोर्ट अपने ऑर्डर में भी दे सकता है। कभी कभी ऐसा होता क्यों है, कभी कभी कुछ लोग एनआरआईज होते हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, एनआरआई है, मान लो इज लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम एंड ही डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, और जिस प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ ये सूट चल रहा है ये वाला, तो इन दैट केस रुद्राक्ष विल से
दैट जय की तो एक ही प्रॉपर्टी है, अगर मान लो ये भी अगर हार गया ये, तो who will pay for the expenditure which I am incurring to defend this appeal, to argue this appeal? I've hired an advocate, I'm coming and going from my house, etc., etc. So in that case, court will take security from Jay as a cost, and if Jay loses, the court will give this security in the form of cost to Rudraksh. ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है. रूल 11 प्लीज, इंपॉर्टेंट है. 11 is important. Power to dismiss appeal without sending notice to lower court. The appellate court, after fixing a day for hearing the appellant or his pleader and hearing him accordingly if he appears on that day, may dismiss the appeal. The appellate court, after fixing a day for hearing the appellant or his pleader and hearing him accordingly if he appears on that day, may dismiss the appeal. आगे चलो. If on the day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing, the court may make an order that the appeal is dismissed. मतलब appellant जिसने appeal file किया वो appear नहीं हुआ, तो court बोलेगा appeal dismissed. Number 3, the dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the court from whose decree appeal was preferred. बट ट्रायल कोर्ट को नोटिफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम द अपीलेट कोर्ट दैट आपकी कोर्ट से हमारे पास अपील आई थी, अब वो हमने डिसमिस कर दी है. नंबर 4, वेयर एन अपीलेट कोर्ट नॉट बीइंग द हाई कोर्ट dismisses an appeal under sub rule 1, it shall deliver a judgment recording in brief its grounds for doing so. Doing so मतलब for dismissing the appeal, and the decree shall be drawn up in accordance with the judgment. क्या कह रहे हैं? ऑर्डर 41 रूल 11 क्लॉज 1 क्या कह रहा है? दो पार्टीज Jay has filed an appeal. Jay has filed an appeal. जैसी Jay ने अपील फाइल करी, कोर्ट विल फिक्स a date. Court will fix a date for hearing. On this date, the appellant has to appear. Mind you, respondent को अभी इसको समन्स इशू नहीं हुआ है. इसको अभी समन्स इशू नहीं हुआ है, अभी इसकी पहली तारीख है, तो पहली तारीख में appellant appear होगा. On the first day, the court will hear. Appellant will appear and argue, and on the first day, the court will hear the appellant. अगर कोर्ट को लगता है, if court finds that there is no sufficient ground, if the court finds that there is no sufficient grounds for the appeal, the court will dismiss the appeal. The court will dismiss the appeal there and then, immediately, for पहली तारीख पे. First day पे ही, if the court believes that there is no sufficient ground, the court will dismiss the appeal. But if the court finds that there are sufficient grounds, if the court finds that there are sufficient grounds, in that case, the court, the court, instead of dismissing, will issue notice to the opposite party. We issue notice to the opposite party. और फिर उसके बाद दोनों parties appear होंगी and there will be by-party hearing. And there will be, मतलब यहाँ से appellant भी appear होगा और यहाँ से respondent भी appear होगा and there will be by-party hearing. तो पहला क्लॉज ये बोल रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है पहली तारीख पे कि appellant के पास there are no sufficient ground is there, then on the first day itself the appellant will dismiss the appeal. But if the court finds that there are sufficient grounds,
then the court will, instead of dismissing, the court will issue notice to the respondent. Both the parties will appear themselves, or they can, if they want to argue, or will appear through their advocates, and then a bi-party hearing will take place. This is what Rule 11 says. But Rule 11 basically ये बोल रहा है कि अगर पहली तारीख पे ही dismissal हो जाए, the appellate court, after fixing a day for hearing the appellant or his pleader, or hearing him accordingly, if he appears on that day, dismiss the appeal. So, if there is no sufficient ground, dismissal on first hearing is what clause 1 is talking about. So, बगल में लिख लो, clause 1 is dismissal on first hearing. You go in appeal, court will scrutinize the ground. Court को लगता है कि आपको थोड़ा सुनेगा भी. Court will tell you to argue your case. If court finds that there is no merits, no grounds, dismissal. If yes, opposite party को notice, opposite party will appear by party hearing. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है. अब वो जो डिसमिसल, अगर मान लो होल्ड ऑन, मान लो डिसमिसल हो गया, तो जैसे डिसमिसल हुआ, उस डिसमिसल की नोटिफिकेशन ट्रायल कोर्ट को भी चली जाएगी जहां से अपील प्रेफर हुई थी. So dismissal of appeal will be notified to the trial court. ये देखा, clause 3 क्या लिखा है? The dismissal of an appeal under this rule shall be notified to the trial court from whose decree appeal was preferred. जो भी ट्रायल कोर्ट की डिग्री, जो भी ट्रायल कोर्ट से डिग्री से अपील हुई थी, उसी ट्रायल कोर्ट को नोटिफाई कर दिया जाएगा दैट आपकी डिग्री, आपके कोर्ट से एक डिग्री पास हुई थी, एक पार्टी ने अपील की थी, वो अपील हमने डिसमिस कर दी है. लेकिन ये याद रखना, पहली डेट में बिफोर इशूइंग नोटिस, इट इज ओनली द अपेलेंट हु इज आर्गुइंग, जिसने अपील फाइल की है, ओनली ही इज आर्गुइंग. ऑपोजिट पार्टी इज नॉट आर्गुइंग. ऑपोजिट पार्टी विल ओनली आर्ग्यू वंस द नोटिस हैज बीन इशूड टू द रिस्पोंडेंट एंड ही विल अपीयर. समझ में आ गया? And somebody was asking questions. कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? No? Has everybody understood this? Yes, sir. Understood. Yes, sir. ठीक है. 11A. Every appeal shall be heard under Rule 11 as expeditiously as possible, and endeavors shall be made to conclude such hearing within 60 days. मतलब बाय पार्टी हेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं 11A में. 11A में उस टाइम की बात कर रहे हैं, याद रख लो, देख लो. 11A में ये लोग बात कर रहे हैं वो फर्स्ट हियरिंग की. ये फर्स्ट हियरिंग शैल बी कंक्लूडेड विद इन 60 डेज. फर्स्ट हियरिंग शुड बी कंक्लूडेड इन 60 डेज का मतलब या तो नोटिस इशू करा तो नोटिस इशू कर लो, या डिसमिस करा तो डिसमिस कर लो. क्योंकि अगर आप 60 डेज में नहीं करते हो तो हम 60 डेज में जो भी करना है करो, क्योंकि उसके बाद बाय पार्टी हियरिंग भी तो होनी है. दैट विल टेक इट्स ओन टाइम. नोटिस होना है तो नोटिस होने के बाद बाय पार्टी हियरिंग, डिसमिस हो गया तो फिर तो डिसमिस हो ही गई. 11 इज टॉकिंग अबाउट दैट. 12 देख लो, डे ऑफ हियरिंग अपील, वही यही कह रहा है. अगर डिसमिस नहीं हुई, फर्स्ट हियरिंग पे डिसमिस नहीं हुई, तो 12 ये कह रहा है देन द कोर्ट विल फिक्स अ डेट फॉर बाय पार्टी हियरिंग. कोर्ट विल फिक्स अ डेट फॉर बाय पार्टी हियरिंग. If not dismissed, court will go for by party. इसको आप रिलेट कर सकते हो ऑर्डर 5 रूल 6 सीपीसी के साथ भी, उसमें भी यही होता है. You can relate it with order 5 rule 6 CPC also. आगे चलो. थर्टीन है ही नहीं, 13 इज रिपील्ड. 14 पे आ जाओ सीधा. पब्लिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस और द डे ऑफ हियरिंग अपील. जैसे अब इसमें बेसिकली ये लिखा है
दैट अगर मान लो जैसे आप समन्स इशू करते हो, जैसे समन इशू किया करते थे हम लोग इन द व्हेन द प्लेंट वाज फाइल्ड, सेम वे नोटिस विल बी सर्व टू द ऑपोजिट पार्टी. तो एज पर रूल 14, एज पर सॉरी, तो ये लिख के रखना अपने पास. एज पर ऑर्डर रूल 40, एज पर ऑर्डर रूल 41 रूल 14, रूल 5 के इस पे रूल्स लगेंगे. रूल ऑर्डर 5 के रूल्स इस पे एप्लीकेबल होंगे. जैसे आप प्लेंट फाइल करने के बाद, ऑफिस ऑब्जेक्शन रिमूव करने के बाद, जैसे समन्स इशू होते हैं ऑपोजिट पार्टी को, डिफेंडेंट को, सेम वे जब अगर मान लो नोटिस हो गया तो ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी रूल्स विल बी एप्लीकेबल टू ऑर्डर 41 रूल 14. और अगर आप 14 क्लॉज 2 पढ़ोगे तो 14 क्लॉज 2 में ये लिखा है दैट either you send the notice to the trial court, either the appellate court will send notice to the trial court, or the trial court will serve the notice to the defendant, whatever it is. या तो appellate court डायरेक्टली नोटिस भेज दे ऑपोजिट पार्टी को, या appellate court वो नोटिस पहले ट्रायल कोर्ट को भेजे और ट्रायल कोर्ट फिर वो नोटिस डिफेंडेंट को भेजे. देखो यही लिखा है. Appellate court may itself cause notice to be served. Instead of sending the notice to the court from whose decree the appeal is preferred, appellate court may itself cause the notice to be served to the respondent or his pleader under the provision above referred to. या तो इसका मतलब ये है, या तो appellate court खुद नोटिस भेज दे, या वो नोटिस ट्रायल कोर्ट को भेजे और ट्रायल कोर्ट फिर वो नोटिस डिफेंडेंट को भेजे. 3 में क्या लिखा है? The notice to be served on the respondent shall be accompanied by a copy of memorandum. Obviously memorandum में ग्राउंड लिखे होते हैं, तो उस नोटिस की कॉपी के साथ मेमोरेंडम, बेसिकली पूरा एक अपील जो अपने जो फाइल होती है वो पूरी अपील की पोथी एंटायर बंच ऑफ अपील गोस. मेमोरेंडम क्या, पूरा एंटायर बंच ऑफ अपील which has been filed by the appellant, that is entire set is given respondent so that accordingly he can prepare for his defense. चले आगे, समझ में आ रहा है? People understand? Yes, sir. ठीक है. Order rule 14 clause 4 पे आ जाओ. Notwithstanding anything to the contrary contained in sub rule 1, it shall not be necessary to serve notice of any proceeding incidental to an appeal. कोई प्रोसीडिंग चल रही है अपील के इंसिडेंटल, उसका नोटिस देने का कोई मतलब नहीं है अपीलेट कोर्ट को, डिफेंडेंट को. So it is not necessary to serve the notice of any proceeding which is incidental to the appeal to any respondent. समझ में आ गया? कोई भी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग चल रही है अगर अपील के साथ साथ, तो आपने जिस अपील का नोटिस सर्व करना है, आप सिर्फ उसी अपील का नोटिस सर्व करोगे. आप कोई भी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग का नोटिस सर्व नहीं, जो उसके पैरेलल चल रही हो, इंसिडेंटल चल रही हो, उसका नोटिस सर्व करने की आपको जरूरत नहीं है. आप जिस अपील में नोटिस इशू हुआ है, सिर्फ उस अपील का ही नोटिस या तो आप खुद दे दो रिस्पोंडेंट को, या आप ट्रायल कोर्ट को भेज दो और ट्रायल कोर्ट खुद दे दे रिस्पोंडेंट को. रूल 5 क्या बोलता है? नथिंग इन सब रूल 4 शैल बार द रिस्पोंडेंट रेफर्ड टू इन द अपील फ्रॉम डिफेंडिंग इट. बट अगर उसको नोटिस नहीं मिला है, but still he wants to argue or he wants to participate, then you will not bar him. अगर इंसिडेंटल नोटिस नहीं मिला है अपील का किसी एक पार्टी को, बट वो पार्टी चाहती है टू पार्टिसिपेट इन द अपील, देन यू कैन नॉट बार दैट पार्टी. आगे चलो. रूल 16. On the day fixed or on any day to which the hearing may be adjourned, the appellant shall be heard in support of the appeal. Basically, they have started talking about trial. क्या होता है basically in trial? If the plaintiff does not appear, the suit gets dismissed. If the defendant does not appear, it is taken ex parte.
is taken ex parte. Same rule is applied to Order 41 Rule 16. The hearing will be done by both the parties. बेसिकली ट्रायल का रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कि ट्रायल में अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता तो सूट डिसमिस हो जाता है, और अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चालू हो जाती हैं. तो सेम रूल अप्लाइज टू अपील ऑल्सो. सेम रूल अप्लाइज टू अपील ऑल्सो. और अपील के केस में भी वैसे तो if you go by law, both the parties has to appear and argue. But if not, if the appellant does not appear, the appeal will get dismissed. If the defendant does not appear, appeal will be decided ex parte. आगे चलो. Rule 17, please. Dismissal of appeal for appellant's default, where on the day fixed or on any other day to which the hearing has been adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing, the court may make an order that the appeal is dismissed. वही जो मैंने पढ़ाया, appellant does not appear, and when the hearing is called on for when the appeal is called on for hearing, in that case your appeal will be dismissed. अब ये दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मजाक में नहीं ले सकते, मतलब यू कैन नॉट टेक इट लाइटली इन दिस वे दैट सबसे पहले तो ये समझो कि ऑर्डर 41 रूल 17 कैन बी इंटररिलेटेड विद सॉर्ट ऑफ ऑर्डर रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 8. ऑर्डर 9 रूल 8 में भी यही होता है. दूसरा ये समझो कि इफ द अपेलेंट डज नॉट अपीयर, if the appellant does not appear and his appeal is dismissed, तो ये याद रखना that this dismissal order is not on merits. Merits पे dismissal नहीं हुआ है आपका. This dismissal is on a very technical ground. This dismissal is on a technical ground and not on merits. Because merits पे होने का मतलब क्या होता है? That कोर्ट ने आपको प्रॉपरली सुना है और सुनने के बाद आपका केस डिसमिस किया है. बट ऐसे तो यहाँ हुआ ही नहीं. यहाँ पर डिसमिस इसलिए हुई है because you did not appear. So when you do not appear, then the dismissal order is never on merits. It is always on a very technical ground. Point clear, everybody? Yes, sir, clear. Order Rule 17 clause 2 ये बोल रहा है कि अगर appellant appear होता है, if appellant appears but respondent does not appear, then उस केस में ex parte proceedings होंगी. उसको आप you can relate order 41 rule 17 clause 2 with order 9 rule 6 clause 1 clause A. देखो पढ़ लेते हैं एक बार इसको. Hearing appeal ex parte, where the appellant appears and the respondent does not appear, the appeal shall be heard ex parte. Appellant appears, respondent does not appear, it will be heard ex parte. So you can compare it with order 9 rule 6(1)(a. मैंने बोला है, वो ध्यान रखना. 18 has been repealed. 19 पे आ जाओ. Readmission of appeal dismissed for default. Where an appeal is dismissed under Rule 11, Sub-Rule 2 or Rule 17, the appellant may apply to the appellate court for readmission of the appeal, and where it is proved that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing or from depositing the sum so required, the court shall readmit the appeal on such terms as to cost or otherwise thinks fit. जैसे ऑर्डर 19 में बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेशन.
कि आपका अपील डिसमिस हो गई है, सॉरी नॉट रेस्टोरेशन, एक मिनट जाओ, उसको ऐसे लिखो। अंडर ऑर्डर 41 रूल 19 योर अपील इज डिसमिस्ड। और अगर आप ऑर्डर 41 रूल 19 की बात करते हो तो ऑर्डर 41 रूल 11 में क्या हुआ था और ऑर्डर 41 रूल 17 में क्या हुआ था, उसको भी कंपेयर कर लो साथ साथ ही। ऑर्डर 41 रूल 11 में भी डिसमिसल हुआ था, लेकिन अपेलेंट वहां पर अपीयर नहीं हुआ था। अपेलेंट डिड नॉट अपीयर। और ऑर्डर 41 रूल 17 में क्या हुआ था, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। तो वो यही कह रहे हैं 19 में, देखो, वेयर एन अपील इज डिसमिस अंडर रूल 11 सब रूल 2 और रूल 17। तो 11 की बात कर रहे हैं, सब रूल 2 और रूल 17, द appellant may apply to the appellate court for readmission of the appeal. वापस for he can apply for restoration, for readmission of the appeal. And where it is proved that he was prevented by insufficient cause. जब आपकी अपील रिस्टोर करवा रहे हो अपनी वापस, तो you have to prove sufficient cause as to why you did not appear. तो क्या what was preventing you to not appear and arguing your case? So they're talking about restoration of the appeal, but only if you prove sufficient cause. Only if you prove sufficient cause. आगे चलो 20 पे आ जाओ प्लीज। Power to adjourn hearing and direct persons appearing interested to be made respondent. देखो क्या होता है इसमें, आपको मैं समझा देता हूँ। 20 इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। There was a suit, let's suppose, between me and Kashish on one hand versus, let's suppose, Rudraksh. There was a suit between me and Kashish versus Rudraksh. अब ध्यान सुनना, इस केस में I got the degree in my favor. I got a degree in my favor. Kashish का suit got dismissed. Kashish का suit got dismissed against Rudraksh. Now, because I have won, so Rudraksh has gone in appeal. This appeal he has filed against whom? This appeal he has filed against Jai. This appeal he has filed against Jai. But इसके अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। इस केस में if court is satisfied that कशिश का इंटरेस्ट जय के साथ जुड़ा हुआ है, if the interest of Kashish is interlinked or is attached with Jay and appeal effect होगी उससे, in that case what the court is saying that the court will make Jay also a party. Originally Jay was not a party. Originally Jay was not a party. वो तो बाद में कोर्ट ने बना दिया बिकॉज उसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा था, because his interest was being affected. Because his interest was being affected, hence he was made a party. Because joint interest था ना हमारा, because we had a joint interest. So because we had a joint interest और मैं बेशक जीत गया हूं, तो ऑपोजिट पार्टी कशिश को भी वो जोड़ लेंगे। बेशक उसने मेरे खिलाफ उसने अपील फाइल की थी, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट जॉइंट है, तो इस केस में कशिश को भी ऐड हो जाएगी इसी अपील में। ये समझ में आ गई? फिर समझाऊं?
सर एक बार फिर से समझा दो। फिर समझा दूं? हाँ, मुझे भी लगा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आया मैंने क्या पढ़ा दिया, सॉरी, मतलब मुझे समझ में आया बट वो मजा नहीं आया जैसे मैं पढ़ाता हूँ। दो लोग हैं, मैं और कशिश, हमने एक जॉइंट सूट किया है रुद्राक्ष पे। उस सूट के जब जजमेंट आई तो जज ने बोला जय तो हैज वन, बट कशिश हैज लॉस्ट अगेंस्ट रुद्राक्ष। तो जय को उसके फेवर में डिग्री मिल गई, कशिश का कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया, कशिश का कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया क्वा रुद्राक्ष। तो कशिश को तो एक बारी के लिए भूल जाओ आप। रुद्राक्ष, क्योंकि जय जीत गया था रुद्राक्ष के खिलाफ, तो रुद्राक्ष ने अपील फाइल करी जय के खिलाफ। रुद्राक्ष ने अपील फाइल करी जय के खिलाफ, wherein जय इज द रिस्पोंडेंट, wherein जय इज द रिस्पोंडेंट। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है, अब थोड़ा ध्यान समझिए। इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इस अपील में जय का इंटरेस्ट और कशिश का इंटरेस्ट आपस में अटैच्ड है, और अगर मैं जय के खिलाफ कोई अपील सुनूंगा तो उस अपील का इफेक्ट कशिश पे भी पड़ेगा, क्योंकि घर लगभग सेम है जैसे, तो उस केस में बेशक रुद्राक्ष ने अपील फाइल की थी जय के खिलाफ, कोर्ट कशिश को भी ऐड कर देगा इसी अपील में, कोर्ट कशिश को भी ऐड कर देगा इसी अपील में। अब तुम्हें क्या समझ में आ जाना चाहिए? यस सर बाबू। आगे चलो प्लीज। Clause 2. No respondent shall be added under this rule after the expiry of period of limitation for appeal unless the court for the reasons to be recorded allows that to be done on such terms that to call. अगर किसी को पार्टी को ऐड करना है अपील में, मान लो there was a appeal going on between Jay and Rudraksh. If Kashish wants to get added, or Kashish wants to get added after the limitation period is over, in that case अगर लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया है तो सबसे पहला तो आंसर है कि कोर्ट अलाउ करेगी नहीं, और लेकिन अगर कोर्ट अलाउ करेगी तो कोर्ट विल आस्क कशिश एज टू द सफिशिएंट कॉज, एज टू व्हाई हैव यू कम लेट टू द कोर्ट. The court will ask for a sufficient cause from Kashish, and if the court is satisfied, only then will the court allow Kashish to be impleaded as one of the parties to the suit. आगे चलिए प्लीज, 21 पे आ जाइए. Rehearing on application of respondent against whom ex parte decree made, where an appeal is heard ex parte appeal सुनी गई है, and judgment is pronounced against the respondent, मतलब ex parte डिग्री पास हो गई है. He may apply to the appellate court to rehear the appeal. मतलब ऑर्डर 41 रूल 21 को, ऑर्डर 41 रूल 21 को आप ऑर्डर 9 रूल 13 के साथ भी पढ़ सकते हो, कि जहां पर एक्स पार्टे डिग्री ऑर्डर पास हो गया है, where ex parte decree order has been passed, then you can apply for setting aside. Then you can apply for setting aside of that ex parte decree. लेकिन जब आप सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन फाइल करते हो, यू विल हैव टू सैटिस्फाई द कोर्ट एज टू व्हाई यू डिड नॉट अपीयर. क्या आपको नोटिस नहीं मिला था? Was notice not duly served to you? कहने का मतलब any sufficient cause has to be shown. Any sufficient cause has to be shown as to why you did not appear.
Any sufficient cause has to be shown as to why you did not appear. आगे चलो, ये और 21 क्लियर है, रूल 21 क्लियर है? यस सर। ठीक है। 22 upon hearing respondent may object to the decree as if he had preferred a separate appeal. देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। ये अभी पढ़ लीजिए, ये बाद में समझ में नहीं आएगा आपको, कॉलेज में भी नहीं आएगा, अभी पढ़ लीजिए अच्छे से। ऑर्डर 41 रूल 22 टॉक्स अबाउट क्रॉस ऑब्जेक्शंस। देखो क्या बोलता है, मैं बताता हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग यू कैन रीड द सेक्शन देयर आफ्टर। देयर इज सूट गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड कशिश। देयर इज सूट व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड कशिश। सूट इन द सेंस अपील। लेट्स सपोज मैंने अपील फाइल की है। आई फाइल एन अपील against Kashish, and this appeal is in the limitation period. This appeal is in the limitation period. कोर्ट ने रूल 11 में और रूल 14 की बात करूंगा मैं आपसे। रूल 11 में मुझे सुना, कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड्स बनते हैं, तो कशिश को नोटिस सर्व कर दिया। कशिश को नोटिस सर्व कर दिया और नोटिस सर्व करने के बाद एक डेट फिक्स कर ली। इस तारीख पे दोनों पार्टीज अपने अपने वकील को लेकर हाजिर हो जाएं फॉर आर्गुमेंट्स। लेकिन उस तारीख से पहले कोर्ट ने कशिश को डायरेक्शंस दी कि तुम अपना रिप्लाई फाइल करो अगेंस्ट दिस अपील। उस डेट से पहले कोर्ट ने कशिश को ये ऑर्डर पास किया, ये डायरेक्शंस पास करी कि एक तारीख फिक्स कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए। सो फॉर एग्जांपल कोर्ट ने तारीख फिक्स करी 20 नवंबर और नोटिस सर्व हुआ है 12 नवंबर को। तो कोर्ट बोलेगा 20 नवंबर तुम्हारी तारीख है, तुम अपना रिप्लाई 20 तारीख से पहले पहले कभी भी फाइल करो और उसकी कॉपी जय को भी दो। अब कशिश जब रिप्लाई फाइल करेगी इस अपील के खिलाफ, तो वो रिप्लाई पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई होगा। दैट रिप्लाई विल बी पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई, सॉर्ट ऑफ WS ही मान लो, क्योंकि WS में भी आप पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करते हो। ऐसा भी हो सकता है, मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसा भी हो सकता है कि जय ने अपील फाइल की है कशिश के खिलाफ, क्योंकि जय हार गया था ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट से, बट ट्रायल कोर्ट ने कशिश को सिर्फ पोजेशन दिया उसका, कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं दी, कॉस्ट मीन प्रॉफिट कुछ नहीं दिए कशिश को, सिर्फ घर की पोजेशन दे दी। और मैंने तो अपील फाइल की है फॉर पोजेशन ऑफ द हाउस प्लस कॉस्ट प्लस मीन प्रॉफिट्स, बट कशिश को पोजेशन दे दी। जीत तो गई कशिश, तभी तो अपील फाइल की उसके खिलाफ, जीत तो गई है कशिश, बट कशिश को कोर्ट ने कॉस्ट या मीन प्रॉफिट कुछ भी अवॉर्ड नहीं किए। तो देखा जाए तो जय भी अग्रीव्ड है, जय इज ऑल्सो अग्रीव्ड एंड कशिश इज ऑल्सो अग्रीव्ड। बोथ द पार्टीज आर अग्रीव्ड। तो अब होगा क्या? व्हेन जय इज अग्रीव्ड एंड कशिश इज ऑल्सो अग्रीव्ड, then what will happen? तो उस केस में ऑर्डर 22 ये कह रहा, रूल 22 ये कह रहा है कि कशिश इन दोनों के लिए जो उसको नहीं मिला
उसके लिए अपील फाइल ना करें अलग से। डोंट फाइल अ सेपरेट अपील। ये जब तू रिप्लाई फाइल करेगी ना इसका कशिश, व्हेन यू विल फाइल द रिप्लाई टू दिस अपील, इसी रिप्लाई पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई में अपने ये वाले ऑब्जेक्शंस जोड़ देना, अपना ये अब जोड़ देना। अलग से जरूरत नहीं है फाइल करने की। सो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अ फ्रेश अपील, in that same appeal which has been filed by Jai, and in the reply that you are filing, add your objections. तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला it talks about cross objections. Take 1 minute and suck it in. थोड़ा टाइम लेता है समझने के लिए। सर एक बार लास्ट पार्ट फिर से समझा देंगे जहाँ पे हम दोनों पार्टीज अग्रीव्ड है। हाँ, दोनों पार्टीज अग्रीव्ड है। क्यों अग्रीव्ड है? तो जय तो हारा, तो इसलिए तो वो तो अग्रीव्ड है ही है। बट बेशक कशिश जीत गई, उसको पोजीशन मिल गई, बट कशिश ने उसके साथ साथ कॉस्ट भी मांगी थी सूट की। कशिश का आना जाना, वकील को हायर करने के पैसे, सब कुछ मांगा था। कोर्ट ने वो तो नहीं दिया, इसको सिर्फ घर की पोजीशन दे दी। अब कशिश इन दोनों को क्लेम करने के लिए अलग से भी अपील फाइल कर सकती है, बट वो अपील फाइल करने जा ही रही थी कशिश, उससे पहले जय ने अपील फाइल कर दी। तो उस केस में 22 कहता है कि यू डोंट फाइल अ सेपरेट अपील। इस अपील का जब तुम रिप्लाई तैयार करोगे ना, इस अपील का जब तुम रिप्लाई तैयार करोगे ना, व्हेन यू विल प्रिपेयर द रिप्लाई, उसी रिप्लाई में ये दोनों पॉइंट्स भी ऐड कर लो। ये दोनों पॉइंट्स भी ऐड कर लो, तो आपका अलग से अपील फाइल करने का पैसा बच जाएगा। just to save multiplicity of proceedings. हाँ जी, नहीं समझ में आया होगा अभी भी? सर आ गया समझ में। किसको नहीं आया बताओ, मैं फिर से समझा सकता हूँ कि ये तुम्हें बाहर समझ में नहीं आ सकता। सबको समझ में आया है ये? Is this point clear to everybody? सर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं बताओ? सारा? हाँ जी सर। कर लो। सर याद हो जाएगा ना इसलिए। चलो, मैंने कहा मना किया कि मैं नहीं कर रहा, मैं तो कर ही रहा हूं। मैंने कशिश के खिलाफ अपील फाइल करी है कोर्ट में, और अपील वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर है। अपील इसलिए फाइल करी क्योंकि ट्रायल कोर्ट में हमारा डिस्प्यूट चल रहा था विद रिगार्ड टू द पोजेशन ऑफ द हाउस, और वहां से वो कशिश जीत गई। अब कशिश जब जीती तो कोर्ट ने बोला दैट कशिश जय विल हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द हाउस टू कशिश। लेकिन कशिश ने जब अपना रिप्लाई WS फाइल किया था, उस WS में कशिश ने अपार्ट फ्रॉम आस्किंग फॉर पोजेशन ऑफ द हाउस हैड आल्सो आस्क्ड फॉर कॉस्ट प्लस मीन प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो जब कोर्ट ने पोजेशन ऑफ दी कशिश को, तो सिर्फ पोजेशन ही दी, कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं दिया। तो कशिश इज ऑल्सो अग्रीव्ड कि उसका जो इतना खर्चा हुआ, वकील को हायर करने की फीस गई, सब कुछ हुआ, वो उसके पैसे तो मिले नहीं उसको। तो इसके लिए कशिश कैन फाइल एन अपील इन द अपीलेट कोर्ट आस्किंग फॉर कॉस्ट एक्सेट्रा थिंग्स। कशिश फाइल करने जा ही रही थी अपील, इतने मैंने अपील फाइल कर दी और कोर्ट ने नोटिस ले लिया कि इस तारीख को डेट फिक्स्ड है हमारी हियरिंग की, और कशिश को कोर्ट ने ऑर्डर किया है टू गो एंड टू फाइल दी पॉइंट वाइज रिप्लाई, जैसे आप WS में पॉइंट वाइज रिप्लाई फाइल करते हो। कशिश को जब ये कशिश पॉइंट वाइज रिप्लाई फाइल करेगी,
उसी पॉइंट वाइज रिप्लाई में शी कैन रेज हर ऑब्जेक्शंस दैट आई वाज नॉट अवॉर्डेड कॉस्ट प्लस मीन प्रॉफिट्स फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट, सो आई मे बी अवॉर्डेड दैट। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब कशिश को भी ऑब्जेक्शन है, जय को भी ऑब्जेक्शन है। Jay also has an objection and Kashish also has an objection. Kashish, for her set of objections, she is not filing a separate appeal. She has joined those objections in the appeal which has been filed by Jay. अब तो आगे आ जाना चाहिए। अब ठीक है, आगे चलो। यस सर। हाँ, इसको तुम कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर पता है किसके साथ कर सकते हो? You can compare this with मतलब ऑर्डर 41 रूल 22 को कंपेयर करो। किसके साथ करोगे? काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम में तो कर रही है, शी इज डूइंग काउंटर क्लेम। बस नाम डिफरेंट है, यहाँ मैंने ग्रॉस ऑब्जेक्शन यूज कर दिया, वहां काउंटर क्लेम है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक और चीज अभी मेरे ध्यान में आई है, अब ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज प्रैक्टिकल स्टफ जो हम कोर्ट में करते हैं। मान लो अब कशिश को अपने मीन प्रॉफिट्स और अपने कॉस्ट के लिए अपील फाइल करनी है। तो कशिश आज ऑर्डर आया, कशिश ने 10 वकीलों से बात करी, किसी ने बोला करो, किसी ने बोला छोड़ दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी प्रोसेस में कशिश का लिमिटेशन पीरियड निकल गया फाइल करने का। फिर कशिश ने मन बनाया कि मैं फाइल करूंगी, बट कशिश का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर गया। अब कशिश के पास 2 ऑप्शन है, ये बात ध्यान सुनना, और ये प्रैक्टिकल है और ये कोई नहीं बता पाया था तुम्हें। अब कशिश के पास 2 ऑप्शन है, या तो कशिश अपील फाइल करे विद कशिश अपील फाइल करे फॉर कॉस्ट मीन प्रॉफिट एक्सेट्रा विद सेक्शन 5 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले एक्सप्लेनिंग द कोर्ट द सफिशिएंट कॉज। या तो कशिश ये कर ले, या सेकंड वो क्या करे कि वो जय का रिप्लाई फाइल करना ही है, उसमें क्रॉस ऑब्जेक्शन रेज कर दे। तो उससे क्या होगा, विच इज प्रेफरेबल? क्रॉस ऑब्जेक्शन इज प्रेफरेबल। Why to file an appeal, and that too which is barred by time, which is barred by limitation? Why to file that appeal? So instead of filing an appeal to claim mean profits and costs etc., which is time barred, raise those 2 points in cross objection. ये एक लूप हो, मतलब ये लूप हो, एक तरीका है हम जो कोर्ट में यूज करते हैं। अगर टाइम बार हो गया है तो आप काउंटर क्लेम कर लो। ये बारीकी है, समझ में आया कि नहीं? Yes, I understood. ठीक है, आगे चलो। अच्छा आगे चलो। A form of objection and provisions applicable thereto. Such cross objection shall be in the form of memorandum and the provision of Rule 1 so far as they relate to the form and content of the memorandum of appeal shall apply thereto. तो बेसिकली वो बोल रहा है फॉर्म होना चाहिए और क्रॉस ऑब्जेक्शन का एक फॉर्म होना चाहिए, उसमें लिखोगे आप क्रॉस ऑब्जेक्शन, कोर्ट फीस फाइल करोगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लॉज 3 रिपील है। क्लॉज 4 पे आ जाओ। Where in any case in which any respondent has under this rule filed a memorandum of objection, the original appeal is withdrawn or dismissed, the objection so filed may nevertheless be heard. जैसे काउंटर क्लेम में अगर ओरिजिनल सूट विड्रॉ हो जाता है लेकिन काउंटर क्लेम चलता रहता है, क्लॉज 4 इज सेइंग कि अगर किसी सूट जय ने जो अपील फाइल की थी, अगर जय ने वो विड्रॉ कर ली है, तो जो कशिश ने जो काउंटर ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं
वो जस्ट बिकॉज जय ने अपील फाइल कर लिया वो काउंटर ऑब्जेक्शन भी विड्रॉ नहीं हो जाएंगे, काउंटर ऑब्जेक्शन चलते रहेंगे। 4 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 द प्रोविजन रिलेटिंग टू सच अपील बाय इंडिजेंट पर्संस शैल एज फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल अप्लाई टू द ऑब्जेक्शन। वो इंडिजेंट पर्सन का रूल है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 23 पे आ जाओ प्लीज। रिमांड ऑफ केस बाय एपिलेट कोर्ट। देखो है सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली समझना। मैं 23 और 23 ये दोनों समझा रहा हूं आपको। ट्वेंटी थ्री और 23A इन दोनों को साथ ही पढ़ते हैं हमेशा, इन दोनों में साथ ही पढ़ते हैं। 20 क्यों साथ पढ़, देखो मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है, समझ में आ रहा है तो बताओ पहले। यस सर। ठीक है जी। 23 में जो डिसमिसल हो रहा है ना, वो डिसमिसल एक बहुत ही प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे हो रहा है। ट्वेंटी थ्री में डिसमिसल एक प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे हो रहा है और 23A में डिसमिसल हो रहा है मेरिट्स पे। तो ये समझ लो, देखो द एजुकेशन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम मी राइट नाउ, दिस इज प्राइसलेस एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा प्लीज अच्छे से पढ़ो। डिसमिसल जो 23 में हो रहा है दैट इज ऑन अ वेरी प्रिलिमिनरी ग्राउंड, and dismissal which is happening in 23A that is happening on merits। अब समझो कैसे, मैं 23 पे समझा रहा हूं आपको। डिसमिसल ऑन अ प्रिलिमिनरी ग्राउंड, मान लो ट्रायल कोर्ट ने एक डिग्री पास करी और वो डिग्री को डिसमिस कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने वो डिग्री को डिसमिस कर दिया ऑन अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ प्रिलिमिनरी इशू। व्हाट विल बी अ प्रिलिमिनरी इशू? जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेट्स सपोज आई डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, या लिमिटेशन से बाहर है, बार्ड बाय लिमिटेशन एक्सेट्रा। तो कोर्ट ने बड़े प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे एक कर दिया अपील। इस डिसमिसल के खिलाफ अपील हुई। अपील में एपेलेट कोर्ट ने इस प्रिलिमिनरी इशू के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया कि नो द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, तो ये जो डिसमिसल ऑर्डर आया था, ये जो डिसमिसल ऑर्डर आया था, ये सेट असाइड कर दिया एपेलेट कोर्ट एंड सेइंग दैट नो दिस कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। तो अगर जब ये सेट असाइड हो गया, सेट असाइड होने के बाद एपेलेट कोर्ट मैटर वापस रिमांड बैक कर देता है टू द ट्रायल कोर्ट फॉर अ रीट्रायल। रीट्रायल कर लो या फ्रेश ट्रायल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। क्योंकि ये जो डिसमिसल है बड़ा प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे है, कोर्ट ने मेरिट्स पे सुनवाई नहीं करी। अगर मेरिट्स पे होता तो क्या होता? If the dismissal would have been on merits, then what would have happened? If the trial court has dismissed your suit on merits, सुन के प्रॉपरली सुना है और सुनने के बाद उसको मेरिट्स पे डिसमिस किया है, then one party will win, another party will be aggrieved, aggrieved party will go to the appellate court, aggrieved party will go to the appellate court. So appellate court will set aside the decision of the trial court, जो रूल 23 में किया है उसने,
वापस भेजेगा मैटर, will resend the matter to the trial court for retrial. Will resend the matter to the trial court for retrial. यही फर्क है 23 और 23A में। है दोनों काम सेम, दोनों में डिसमिसल हो रहा है, एक पे प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे हो रहा है, एक पे मेरिट्स पे हो रहा है। प्रिलिमिनरी ग्राउंड पे हो रहा है तो वो ग्राउंड को सेटिसाइड कर दिया अगर अपीलेट कोर्ट ने, वापस रिमांड बैक कर देगा। मेरिट्स पे हो रहा है, कोर्ट ने वो सेटिसाइड कर दिया ऑर्डर, वापस रिमांड बैक कर देगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Understood. ठीक है जी, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। 24 प्लीज। ट्वेंटी फोर क्या बोलता है? अब आप 23 और 23 ये पढ़ लो, यही लिखा है जो मैंने पढ़ाया आपको। देखो 23 में लिखा प्रिलिमिनरी पॉइंट, और इसमें लिखा है अदरवाइज देन ऑन प्रिलिमिनरी, तभी मैंने बोला मेरिट्स। अदरवाइज देन ऑन प्रिलिमिनरी पॉइंट का मतलब होता है मेरिट्स। ये लिख के रख लो। "24 please. Where the evidence on record sufficient, appellate court may determine case finally." सिंपल है, जरा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। 24 में ये बोल रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट का डिसीजन आ गया है, ट्रायल कोर्ट हमने डिसीजन दे दिया है। द पार्टी एग्रीव्ड हैज वेंट इन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, पार्टी हैज गॉन इन अपील। अब अपील में द एपेलेट कोर्ट विल has, let's suppose, has set aside. Appeal में the appellate court has set aside the decision of the trial court. सिर्फ ना ही उसने डिसीजन सेट असाइड किया, प्लस उसने अपना जुडिशियल माइंड भी लगाया अपीलेट कोर्ट ने। और किस पे लगाया जुडिशियल माइंड? ऑन द एविडेंसेस जो रिकॉर्ड पे थे। कोर्ट ने ना तो सिर्फ ट्रायल कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड किया, बट एविडेंसेस पे अपना दिमाग भी लगाया, और दिमाग लगा के अपील डिसाइड कर दी। दिमाग लगाया ऑन एविडेंसेस एंड डिसाइडेड द अपील। अब इसको करने के लिए एपिलेट कोर्ट चाहे तो नए इश्यूज, न्यू इश्यूज खुद फ्रेम कर सकता है, या वो इश्यू को फ्रेम करने के बाद वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज सकता है फॉर ट्रायल। या तो वो खुद इश्यू डिसाइड कर ले, जो नए फ्रेम किए हैं उसने, या तो वो वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज दे फॉर ट्रायल। फिर समझा देता हूं। ट्रायल कोर्ट से डिसीजन आया, वन द अग्रीव्ड पार्टी हैज गॉन इन अपील, appellate court has set aside the decision, plus the appellate court has applied its judicial mind on the evidences and decided the appeal. उसने appeal decide कर दी। Now for that the appellate court wants in order to decide the appeal, appellate court wants some new issues. So for that the appellate court can either frame the issues himself, or if he wants the same issue, the trial court, the appellate court can send the issues to the trial court for the decision.
Now the trial court will decide. या तो वो अपील को खुद अपने इश्यूज पे डिसाइड कर ले, या जो ट्रायल कोर्ट में ने जो इश्यूज बनाए थे वो भी उसको भी कंसिडर करते हुए सिर्फ उसी ग्राउंड पे अपील डिसाइड कर दे। देखो इस क्लॉज में बेसिकली अपीलेट कोर्ट ही अपील को डिसाइड कर रहा है, तो उस अपील को डिसाइड करते हुए या तो वो नए इश्यूज खुद बना ले इन एडिशन टू व्हाट द ट्रायल कोर्ट हैज मेड और फिर डिसाइड करे, या तो जो इश्यूज ट्रायल कोर्ट ने बना रखे हैं उसी पे अपने डिसीजन दे दे। इधर वेज अपीलेट कोर्ट अपना डिसीजन उस अपील पे खुद ही दे रहा है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। So in the process of giving the decision himself, he can either frame new issues, or if he wants, he need not frame new issues. He will give decision on those issues which has already been framed by the trial court. ये पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी? कि फिर से रिपीट करूं? क्लियर सर। ठीक है। $25. Where appellate court may frame issues and refer them to trial court whose decree appealed from. Where the court from whose decree appeal is preferred has omitted to frame, ध्यान से पढ़ो, has omitted to frame or try any issue or to determine any question of fact which appears to the appellate court essential to the right decision of the suit upon merits, the appellate court may, if necessary, frame issue and refer the same to the trial to the court from whose decree appeal is preferred, or in such case, direct such court to take additional evidence required. मान लो ट्रायल कोर्ट ने 4 इश्यूज फ्रेम किए, बट ट्रायल कोर्ट ने 2 इश्यूज जो इंपॉर्टेंट थे उसको फ्रेम नहीं किया, जो 2 इश्यूज इंपॉर्टेंट थे उसको फ्रेम नहीं किया, मतलब फ्रेम नहीं किया इन सेंस ओमिटेड टू फ्रेम। Finally, the matter went in appeal. अब in appeal, appellate court has 2 options. In appeal, the appellate court has 2 options. या तो वो डिक्री जो यहाँ से आई है, जो डिक्री आई है यहाँ से और लूजिंग पार्टी ने अपील की है, या तो वो डिक्री सेटिसाइड कर दे, या ये जो बचे हुए 2 इश्यूज हैं इसको फ्रेम करे, इसको अपीलेट कोर्ट फ्रेम करे और वापस भेज दे, सेंड इट बैक टू द ट्रायल कोर्ट फॉर ट्रायल, अब लेट्स सपोज उसने सेटिसाइड नहीं किया, उसने वो 2 इश्यूज फ्रेम करके वापस भेज दिए ट्रायल कोर्ट के पास। So once the issue has gone back to the trial court will conduct trial upon these 2 issues only. Trial court will conduct retrial on fresh trial on these 2 issues only. और ट्रायल करने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जजमेंट पास नहीं करनी, भेज देना है अपीलेट कोर्ट के पास, अब अपीलेट कोर्ट पूरे के पूरे 6 इश्यूज को ध्यान से देखेगा, will look at the 6 issues in togetherness and finally will pass the order. और इसके लिए सेंड इट और जो 2 इश्यूज फ्रेम करने के बाद उसने वापस भेज दिया, कोर्ट इसके लिए एक टाइम भी फिक्स कर देगा कि मुझे ये मैटर वापस भेजो विद इन लेट्स सपोज 2 months, ये 2 महीने में ट्रायल कंडक्ट करो इन 2 इश्यूज पे और मुझे वापस भेजो केस।
और एपलेट कोर्ट के पास to add it further, एपलेट कोर्ट के पास ये भी पावर है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट द मैटर बैक टू द ट्रायल कोर्ट फॉर ट्रायल, खुद भी ट्राई कर सकता है, खुद भी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है इसका। लेकिन वो यूजुअली करता नहीं है ऐसे, वो दो इश्यूज को फ्रेम करेगा, फ्रेम करने के बाद इट विल सेंड इट बैक टू द ट्रायल कोर्ट और टाइम फिक्स कर देगा कि यू गेट बैक टू मी विद रिगार्ड टू दीज टू इश्यूज विद इन लेट्स सपोज 2 months या 1 month. So the trial court will conduct trial on these two issues which it had omitted to frame in the first place, and after that we'll send it back to a trial. We'll send it back to the appellate court, and then the appellate court will look at all the issues and finally will decide. समझ में आ गया?